good afternoon class 8. How are you all? Hope you all will be doing good in your home. So students, in the last class we have completed chapter number 12, है ना? Friction. We have completed that chapter. Now, in today's class we are going to start chapter number 13, sound. So what is sound? Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. ठीक है? It produces a sensation of energy by which in our ears, and we are able to hear any music, sounds from various like sources like moving up vehicles, television, music systems, machines. From this every means, when you open the door and close the door, one sound is produced. ठीक है? तो sound क्या है? It is a form of energy which produces sensation of hearing in our ears. ठीक है? Before starting the class, I would like to introduce the sound to yourself. First enjoy the video, then we will start the class. You know that someone is standing outside your door when you hear the doorbell. The sound of the doorbell traveled to you. Can you guess how it traveled? It traveled through air. Yes, here the medium of propagation is air. Sound requires a medium for propagation. Is the medium always air? Not necessarily. The medium of propagation of sound can be solids, liquids, or gases. Yes, sound can also travel through solids and liquids. Before we get to that, let us see some other examples of sound propagating through air. Remember, air is nothing but a mixture of gases. Sound of the siren when the train is approaching you, sound of glass breaking, sound of the firecracker, etc. are some of the examples where the medium of propagation is air. Sound can also propagate through liquids. Let us do one experiment to see this. We place the bell in the water like this so that it does not touch the base of the container. Now keep one of your ears close to the surface of water and shake the bell inside. Do you hear the sound? Yes, you do. Here, the medium of propagation is water. What instrument does the doctor use to check the rate of your heartbeat? Yes, it's called a stethoscope. Doctors place the small disc-shaped object called a turnable diaphragm against your chest. The sound of your heartbeat travels through the tube and can be heard from the two earpieces. So, can you guess the medium of propagation of sound here? Yes, here the medium of propagation is a solid. The tube through which the sound travels is the solid. Now suppose you're standing on one side of a brick wall and your friend on another side with one of his ears close to the surface of the wall. Hit the wall with some wooden object. Ask your friend if he hears the sound on the opposite side. I'm sure he will say yes. Here the medium of propagation is again a solid. So with the help of a few examples, we saw that sound can travel through solids, liquids and gases. But does it mean that sound can travel through anything and everything? The answer is resounding no. The sound cannot travel through vacuum. What is a vacuum? It is a space from where all or most of the matter is removed. Example is outer space. Yes, we cannot hear sound in outer space. That is why they say, in space, no one can hear you scream. In the next video, we are going to talk about some important properties of sound known as amplitude. Students, you will like the video very much and you will able to understand the sound. ठीक है? And how sounds travel. Everything you have to, the sound needs a medium to travel. Everything in this video will very much clearly explained. Hope you will all understand. So let's discuss about this. So sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. मैंने जो बता दिया था. Like when we talk, communicate with others by producing sounds. Birds, insects, animals, everything are capable to producing sounds. When we talk about sounds, so many questions will come to our mind. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम बोल पाते हैं, कैसे हम सुन पाते हैं, कैसे कोई हमको तुरंत बोलता है तो हम तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं, ये म्यूज़िक क्या है, ये साउंड कैसे इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करती है, ये साउंड कैसे आती है, हाउ इट इज़ कॉज्ड. बहुत सारी चीज़ें, सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल कम इन अवर माइंड. ओके है ना? चलो, वी शुड डिस्कस all the questions of your in this chapter. So first we will start through the vibration. ठीक है?
जैसे ही एक एग्जांपल देती हूँ, म्यूज़िक सिस्टम चलता है घर में, स्पीकर, उसके अगर तुम उसके ऊपर अपना हाथ रखोगे तो यू विल ऑब्जर्व उसमें से ना लाउड म्यूज़िक की वजह से वहाँ पे वो वाइब्रेशन एकदम तुम्हारे हाथ पे झटका जैसा आता है ना, वाइब्रेट होता रहता है। और जैसे कि गिटार अगर हम लोग प्लग करते हैं तो जो गिटार में जो वायर्स लगे होते हैं स्ट्रिंग्स, उसको तुम लोग हल्का सा मूव करते हो तो वो रैपिडली मूव होता है, पूरा गिटार तो मूव नहीं होता। सो दिस इज़ वाइब्रेशन, तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। So you can say that a vibration is a rapid back and forth movement of an object about its mean position। एक ऑब्जेक्ट है, उसके मीन पोजीशन से वो बैक फोर्थ पे टू एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है उसका, एंड देन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, सॉरी वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, so here it is given that sound is produced by a vibrating object। okay, sound is produced by a vibrating object। we can say that when object will vibrate, ठीक है, sound is produced। every source of sound is a vibrating object। okay, when vibration are stopped the sound also stops। that sound is produced by vibration made by vibrating object। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, देन द साउंड विल प्रोड्यूस। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है छोटा सा, व्हाट यू हैव टू डू इन द एक्टिविटी, एक बोर्ड ले लो, ठीक है, अब बोर्ड के दो साइड्स आयरन नेल को प्लग कर दो वुडन प्लैंक में, और उसमें रबर लगा दो, और एक साइड से रबर को तुम खींचो, तो क्या देखोगे तुम, वो रबर क्या है, स्ट्रिंग कर रहा है, और वहाँ में हल्का सा रबर बैंड जो है, वाइब्रेशन ऑफ द रबर बैंड, और उसको एक बार तुम छोड़ दो, पहले एक बार उसको स्ट्रिंग करो, सेकेंड वाले में क्या करो, उसको मत करो, तो तुम देखोगे जितने देर तक तुम उसको रबर को स्ट्रेच कर रहे हो और उसको छोड़ रहे हो, वो क्या करेगा, वाइब्रेट होगा और थोड़ा सा साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। सो इन दिस एक्टिविटी इज क्लियर दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ हियर इज अ topic which is called as turning fork। A turning fork is a U-shaped single steel piece with a handle। The two arms of the turning fork are called prongs and the handle is called stem। It is a convenient source of producing sound by sound vibration in a laboratory। So this turning fork is used in a laboratory to produce sound। ठीक है, एक उसका stem है और दो U-shaped का बना हुआ है which is called as prong, and this is used in laboratory to produce sound। वाइब्रेशन के लिए यूज होता है, साउंड वाइब्रेशन के लिए इन अ लैबोरेटरी। ओके, द टर्निंग फॉर्क। नाउ हाउ साउंड्स ट्रैवल, अब साउंड ट्रैवल कैसे करती है, सो लेट्स डिस्कस दिस। सो वी हैव लर्न दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स दिस एनर्जी टू द एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज टू इट। दिस एयर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट vibrating back and forth with the same frequency। These vibrating air molecules passes on their vibration on the next air molecules। This process goes on and ultimately all the air molecules around the sound producing object will start vibrating back and forth। When the vibrating air molecules fall on the eardrum we feel this vibration as a sound। अब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं, okay, when we speak produce the vibrating object produce sound in the form of energy। ठीक है, vibrating object transfer the energy to the air molecules close to it। अब कोई भी vibrating object है जो वाइब्रेट करता है, वो क्या कर रहा है, वो जो एनर्जी है उसको एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब एयर मॉलिक्यूल्स एक उसी अपने मीन पोजीशन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पे क्या कर रहे हैं, मूव करने लगे इन द सेम फ्रिक्वेंसी। अब क्या होता है, सेम वाइब्रेशन अदर वहाँ आसपास जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है उसमें ट्रांसफ़र होता है, एंड ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स वेर मूविंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन देयर सेम पोजीशन। ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अब ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है दे कम्स एंड रीचेस टू अवर ईयर ड्रम, हमारे ईयर ड्रम में आते हैं, एंड वी फील द साउंड व्हेन एंड देन आफ्टर वी विल हियर द साउंड एज अ दिस वाइब्रेशन एज अ साउंड। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से निकला, एयर मॉलिक्यूल्स में वो पहुंचा, वहाँ भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है इन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस एयर मॉलिक्यूल्स कम्स एंड रीचेस अवर ईयर ड्रम, देन दिस वाइब्रेशन वी हियर एज अ साउंड। ओके, इन दिस मैनर द साउंड्स विल ट्रैवल। ठीक है, साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। अब ये तो हमको पता चल गया कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है। नाउ अ साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जैसे एयर में क्या हुआ, एयर इज़ द मीडियम, उससे ट्रैवल करा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड वाइब्रेशन निकला, वो एयर मॉलिक्यूल्स को पहुंचा, एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, देन द एयर मॉलिक्यूल रीचेस टू अवर ईयर ड्रम, देन वी विल हियर दिस वाइब्रेशन एज अ साउंड।
सो द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम. जिससे भी साउंड ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू अदर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, या हमारे ईयर ड्रम है, दैट मीडियम इज कॉल्ड एज, ठीक है, ट्रांसमिटिंग मीडियम. नाउ द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. When your school bell rings, the bell vibrates and produces sound. The sound travels through the air and finally reaches to our ears. तो listeners होते हैं, जो बच्चे होते हैं. So sound moves through a medium from its source to the listener. स्कूल में बेल बजती है, ठीक है, और वो जो बेल वाइब्रेट होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है. वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मीडियम होते हैं, और वो हमारे कान, जो हमारे ईयर्स तक आते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, जो स्कूल में बच्चे होते हैं. सो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड from produced, okay, then it is the medium from its source to the listeners. जो medium है उसका air, उसके through listeners तक पहुँच गया. okay, so here are some activity in your book, जैसे कि sound can travel through a solid. अब मैं इस एक्टिविटी को तुम लोग को नॉर्मली समझा रही हूँ. अगर तुम लोग एक वुडन प्लैंक में अलार्म क्लॉक रख दोगे, आप वहाँ पे देख रहे हो अलार्म क्लॉक क्या कर रहा है, बज रहा है, और तुम अपना कान उस वुडन प्लॉन्क पे दूसरे साइड पे लगा के सुनो, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, साउंड क्या कर रहा है, ऐसा लगेगा तुमको कि उस जो सॉलिड वुडन टेबल है उसमें से आवाज़ आ रही है. सो इट दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड ऑल्सो. इस अभी जो वीडियो हम लोग देखे हैं वो उसमें पढ़े हैं. साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड मीडियम थ्रू देन अ गैस मीडियम. ठीक है, गैस मीडियम जैसे कि एयर में क्या होगा ना, साउंड कम थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है, बट इन सॉलिड द साउंड ट्रैवल फास्टर देन लिक्विड. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू पेज टर्न अगेन. हियर वन एक्टिविटी इज गिवन इन वाटर. अब वाटर में सॉलिड कैसे साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो सेम एक्टिविटी वीडियो में पढ़े हैं, और वैक्यूम की भी एक्टिविटी वीडियो में पढ़े हैं. सो प्लीज़ स्टूडेंट, सॉलिड का इसलिए पढ़ाई क्योंकि सॉलिड की एक्टिविटी नहीं दी हुई थी, इसलिए ये दोनों एक्टिविटीज़ को वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियरली समझो. ओके, सॉलिड में और वैक्यूम में दोनों में वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है. सो प्लीज़ थ्रू द वीडियो learn the activity very carefully, listen the activity very carefully. And in activity 3 and 4 it is clear that the sound travels through solid, liquid and gases. okay, solid, liquid, gas तीनों से sound travel करती है, but in vacuum में situation एकदम अलग होता है. vacuum मतलब बिल्कुल ना वहाँ पे सॉलिड है ना लिक्विड है, कुछ एयर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है. सो अगर वहाँ पे मीडियम ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है, दे आर द मीडियम. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द मीडियम. बट सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, साउंड ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करती है, फास्टर दैन गैस. लेकिन वैक्यूम में अगर कोई मीडियम ही नहीं है, तो हाउ द साउंड विल बी ट्रैवल. सो बाय दिस इट इज़ क्लियर दैट साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट इन वैक्यूम साउंड कैन नॉट बी travel. This activity clearly proves this one. Clear हो गया? Activity number 3 and 4 are the activities sound travel in a solid and sound travel in a liquid. इन दोनों में sound travel कर रहा है. Even air में भी हमको पता है, air में भी sound travel करता है vibrating object से. But in vacuum sound cannot be travel because solid sounds need a medium to travel. Now, speed of sound. Here we are going to start the speed of sound. The speed with which sound waves travel depends on the nature and the density of the medium. ठीक है, मीडियम है जैसे कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है. नेचर ऑफ द मीडियम यानी कि डेंसिटी और नेचर दोनों डिपेंड करता है, देन द साउंड विल ट्रैवल. उसकी स्पीड, साउंड की स्पीड नेचर ऑफ द मीडियम और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा उसका नेचर और उसका डेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा, उतने अच्छे स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा. सो द स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द डेप्थ डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ओके, स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ अ साउंड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, temperature and humidity. So speed of sound in different media is given in the table. In your book 13.1 speed of a sound in different media is given. गैस में कितना रहेगा अलग अलग, लिक्विड्स में कैसा होगा एंड सॉलिड्स में कैसा होगा, तो सारे मीडियम का अलग अलग दिया हुआ है. एंड साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एंड स्लोअर इन लिक्विड्स. ओके, सो हियर आर डिफरेंट मीडियम्स आर गिवन.
ठीक है, साउंड कितना ज़्यादा कैसे ट्रैवल करेगा. सो इट कैन बी क्लियरली सीन बाय इन द टेबल दैट्स द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. क्लियर हो गया. एंड साउंड कैन बी, यू कैन से दैट साउंड कैन मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड, हम लोग साउंड को कैसे मेज़र करेंगे? मीटर पर सेकेंड पे मेज़र करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ओके, सेंसेशन ऑफ हियरिंग. सेकेंड, sound is produced by a vibrating object. Option number A is correct, vibrating object. Third, sound travel fastest in solid, liquid, gases, all mediums. All mediums, क्योंकि solid liquid दोनों में fast करता है as compared to gas, but यहाँ पे option number A and B नहीं दिया है, इसलिए you have to write the option number D, all mediums. Fourth one, solid can travel through both A and B, solids, liquids. ठीक है, ये दोनों होगा. बोथ ए एंड बी आर द आंसर्स. फिफ्थ वन, इन विच मीडियम डज साउंड्स ट्रैवल फास्टर? करेक्ट आंसर इज वुड, बिकॉज वुड इज अ सॉलिड मीडियम. ठीक है. सो नाउ अनदर टॉपिक ऑफ द सेम पेज 183, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स. साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. वेव्स में साउंड ट्रैवल करता है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ वेव. क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स में ट्रैवल कर रहा है तो वेव्स में ट्रैवल करेगा. सो वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री बेसिक क्वांटिटीज़. थ्री बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. व्हाट आर द? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. ओके, अब वेव्स का थ्री बेसिक क्वांटिटीज़ हैं. व्हाट आर दे? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. For example of periodic vibration of a simple pendulum to explain the term amplitude, frequency and time period. Although a simple pendulum does not produce sound waves that you can hear, this will help you to understand the basic terms. अब क्या है ना, ये बेसिक है. जो एम्पलीट्यूड, टाइम, जो साउंड का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से स्टडी करोगे. बट विद द गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ साउंड ट्रैवल इन वेव्स. इसका बेसिक पढ़ लोगे, बट इन डिटेल यू विल एबल टू स्टडी दिस वन इन डिटेल इन हायर क्लासेस. ओके, सो सिंपल पेंडुलम. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड bob suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swim back and forth. पेंडुलम तो हम लोग देखें कैसे होता है. एक थ्रेड से वो बॉब कनेक्टेड होता है और वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है कि दे कैन मूव टू एंड फोर्थ. ठीक है, एक अप साइड, सेकेंड साइड, टू एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट पे वो स्विम करता है. नाउ द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम मूव वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. जब मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं? अगर बॉब बीच में है दैट विल बी ए, अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है दैट विल बी बी, एंड द राइट साइड पे जा रहा है तो सी. ए बी सी मार्क हो गया. अगर वो पेंडुलम, वो बॉब है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करता है बोथ द साइड्स एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, दिस इज सेड टू बी एज वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम. लेफ्ट, राइट, नहीं, पहले मिडिल, देन लेफ्ट, कम टू द मिडिल, देन राइट एंड देन कम टू द मिडिल. ये जो एक ये कंप्लीट कर रहा है बॉब, दिस इज सेड टू बी एज वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, ये क्लियर हो गया. The motion of the pendulum bob from its extreme position B to another extreme position C and back to B is called one oscillation. ठीक है, वो पूरा जब कंप्लीट करके वापस अपने जगह पे आता है then it is said to be as one oscillation. क्लियर हो गया. Now first we will discuss the amplitude of the pendulum, then the time period of the pendulum, then the frequency of a pendulum. ये बेसिक है, अभी पढ़ते हैं. In higher classes 11th और 12th you will able to understand the clean हिस्ट्री ऑफ साउंड वेव्स ट्रैवलिंग. जितना तुम्हारे कोर्स में उतना अभी तुम लोग पढ़ लो. सो लेट्स स्टार्ट. एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. द पेंडुलम ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो एज वी ऑल नो दैट. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना वो दोनों साइड पे जा रहा है, दिस इज सेड टू बी एज एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम. लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी वो कितना मीन पोजिशन उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज सेड टू बी एज
amplitude of the pendulum. The displacement AB or AC is called the amplitude of the pendulum. AB and BC, the maximum displacement is said to be as amplitude of the pendulum. Okay, so amplitude, sorry, it is denoted by A and it is measured in meter. A से एम्पलीट्यूड को A से डिनोट करेंगे और मेजर किस में करेंगे, मीटर में. एम्पलीट्यूड विल बी डिनोटेड बाय A एंड इट विल मेजर्ड इन मीटर. सुनना अच्छे से क्लियरली. नाउ टाइम पीरियड बाय द ऑफ द पेंडुलम. द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ये बहुत ईजी है. पूरा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एक बॉब को कितना टाइम लग रहा है, दिस इज सेड टू बी एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. ओके, the time taken by the bob of the pendulum for one complete oscillation to travel from extreme position B to C and back to B is called the time period of the pendulum, and it is denoted by D and it is measured in S. So whenever you measure the sound, you will measure in meter per second. Meter means amplitude and second means time period. Clear हो गया? Now come to third one, frequency. The number of complete oscillation made by a simple pendulum in 1 second, it's called its frequency. अब 1 सेकेंड में पूरा oscillation complete हो रहा है, that is said to be as frequency. The SI unit of frequency is hertz. ठीक है, hertz बोलते हैं H and Z. Okay, name in the honor of German physicist Heinrich R. Hertz, and this Hertz was given by the German physicist which is called as Heinrich R. Hertz. And it is denoted by N or F. Small n और small f से denote करेंगे. A frequency of 1 hertz is one oscillation per second. So number of complete oscillation, एक oscillation में simple pendulum में 1 सेकेंड में होता है, this is said to be as 1 सेकेंड में पूरे 1 oscillation complete हो रहा है, this is said to be as frequency. ठीक है, and frequency SI unit का frequency कितना है, sorry, the SI unit of frequency is hertz. ठीक है, the SI unit of frequency is hertz and it is given by the German physicist which is called as Heinrich R. Hertz, and this is denoted by N or small f, small n or small f. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. ठीक है, 1 hertz means 1 oscillation per second. Clear हो गया? So this is the sound travels in a wave. Sound travels in a wave. So pendulum का हम लोग देखिए, simple pendulum का. So amplitude of the pendulum, time period of the pendulum and frequency of the pendulum we have discussed. Now in the next class we will discuss the characteristics of sound. Characteristics of sound. What are the different characteristics of sounds are given, वो हम लोग देखेंगे next class में. Okay. So students, this topic is completed and this class is also completed for today. In the next class we will discuss the characteristics of sound, and please after the completion of video I am requesting all the students to read the chapter, otherwise you people were not going to be understand this topic, this chapter sound, क्योंकि बहुत important chapter है. In future you are really going through in detail of the sound chapter. So please students, after the completion of this video or this class chapter, especially this chapter, प्लीज़ रीड द चैप्टर. ठीक है, रीड करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. रीड नहीं करोगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नया टॉपिक है तुम लोगों के लिए, और क्लास 12th 11th 12th में बहुत अच्छे से इसको फिजिक्स में डिस्कस करोगे, इसलिए बेस क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. 8th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द चैप्टर carefully after the completion of video, and whatever you have doubt just ask to me. Okay, till then take care of yourselves. See you all in the next class. Read the chapter, and thank you so much students. See you all in the next class. Okay.